Good morning, students. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Dhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8 maths, and our chapter is playing with number. So, students, in this chapter, we have learned how to find any number if there are digits. How to find any digit when the answer or some numbers is given. Okay, I hope you all are completed 16.1 exercise 16.1 in your notebook. All 10 question we have completed yesterday. So I hope you all are completed these exercise. Now test of divisibility. What do you mean by test of divisibility? In this chapter we learn how to divide any number without division. हम किस टाइप से फाइंड करेंगे कि किसी नंबर को हम डिवीज़न के विदाउट डिवीज़न भी हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं. ओके, हम 6 क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वी हैव लर्न इन 7th क्लास ऑल्सो. ओके, नाउ हमने कौन कौन से डिवीज़न सीखे थे तब? हमने 10, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 or 11. Okay, so let's revise the test of divisibility rule. Okay, so divisibility by 10 is very easy when we want to divide any number by 10. So divisibility rule by 10 is tell us when the ones place is 0, then we can say that the number is divisible by 10. This is certainty the easiest test of all. सबसे easiest test होता है divisibility by 10 and divisibility rule by 5. ओके, सो डिविजिबिलिटी बाय 10 में हम क्या बोल सकते हैं? वी फर्स्ट लुक एट द मल्टीपल ऑफ 10. हमें मल्टीपल ऑफ 10 देखना है. मीन्स 10 का मल्टीपल मीन्स 10 के टेबल में जो जो नंबर आते हैं मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 and so on. Okay, and then at some non multiple of 10. अब नॉन मल्टीपल में कोई भी नंबर आ सकता है. 11, 13, 27 और वी कैन से दैट 15. ओके, सो दे from these list we see that if the ones digit of a number is 0 then the number is multiple of 10. अगर वंस की प्लेस 0 है तो वो नंबर मल्टीपल होगा 10 का. ओके, और एंड इफ द वंस डिजिट इज नॉट 0 देन द नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10. सो वी गेट a test of divisibility by 10. What is the test? If one's place is 0 then the number is divisible by 10. Okay, so what is your divisibility by 10? 10 का divisibility rule क्या हुआ? If the one's place is 0 then we can say that that number is must be divisible by 10. Okay, understand? Now if we talk about divisibility by 5. now here some आप कोई क्वेश्चंस ले लीजिए जिस टाइप से इन्होंने कहा है. अगर कोई नंबर है सी बी ए तो हम इसका एक्सपांडेड फॉर्म किस टाइप से लिखेंगे? 100c + 10b + a. ओके, सो हियर a is the ones digit, b is the tens digit, c is the 100 digit and so on. The dot are there to say that there may be more digit. अगर हम c के आगे भी कोई डिजिट देखना चाहें तो वहाँ पर c के आगे भी डिजिट्स हो सकती हैं. Since 10, 100 are divisible by 10, so are 10b, 100c, and as for the number a is concerned, it must be a divisible by 10. If the given number is divisible by 10, this is a पॉसिबल ओनली. ये कब पॉसिबल होगा? 100c 10b भी डिविजिबल हो 10 से, तो ये पॉसिबल कब होगा? ओनली एंड ओनली a when a is equal to 0. Hence a number is divisible by 10 when its ones digit is 0. ओके, सो आपको माइंड में क्या रखना है? इफ वंस डिजिट इज 0 then the number is divisible by 10. Okay, understand? Now divisibility by 5. What is divisibility rule by 5? So 5 का टेबल आप सबको आता है.
5, 10, 15, 20, 25, 35, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So see here, ones का place क्या है? 5, then 0, then 5, then 0, then 5, then 0, then 5, then 0, 0. Okay, so when हम इसका डिविजिबिलिटी रूल वेरी इजीली बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इसका डिविजिबिलिटी रूल? व्हेन वी सी दैट वंस डिजिट आर ऑलरेडी 5 and 0, एंड नो अदर डिजिट एवर. 5 और 0 के अलावा 5 के टेबल में और कोई डिजिट हमें नहीं दिख रही है. ओके, सो वी गेट आवर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5. ओके, हमने क्या फाइंड किया? इफ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, if the ones digit of a number is 0 or 5, then it is divisible by 5. Okay, understand? अगर वंस का प्लेस 0 और 5 है, so the number is divisible by 5. Okay, if any number having a form of CBA, so 100C, 10B and plus A, so A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो A की वैल्यू 0 हो या A की वैल्यू 5 हो, then the number is divisible by 5. Okay, understand? So if the number is divisible by 5, so A has to be either 0 or 5. Okay student, now the first one has been done for you. See here, हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इफ़ द डिवीज़न n डिवाइडेड बाय 5 लीव अ रिमाइंडर 3, व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n. अगर हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है, सो हमारा n क्या हो सकता है? द वंस डिजिट when divided by 5 must leave a remainder 3, so the ones digit must be either 3 or either 8, because 5 1 जा 5 होता है. हमारा कितना बचेगा 5 1 जा 5 में? सी हियर, अगर मैं 8 को डिवाइड करूँगी 5 से, सो 5 1 जा 5, माई रिमाइंडर इज 3. और वंस का प्लेस अगर 3 है, तब भी हमारे पास में रिमाइंडर बचेगा 3. ओके, सो इन दो केसेस में ही हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 3. ओके, नाउ n डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1. सो अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n. सो सी, अब 5 के टेबल में 5 आता है एंड 10 आता है. 5 से एक ज़्यादा अगर करते हैं हम, तो डेट इज 6. सो अगर 6 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, सो 5 1 जा 5 और रिमाइंडर बचेगा 1. ओके, और अगर 11 होगा तब भी हमारे पास में रिमाइंडर बचेगा 1. वैसे ही अगर 16 होता है, देन इट विल बी ऑल्सो रिमाइंडर इज 1. ओके, अंडरस्टैंड? सो हम बहुत सारे आंसर दे सकते हैं. इफ द डिवीजन n डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4, व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n. सो वंस का डिजिट क्या हो सकता है? सी हियर, यहाँ पर अगर हमें 4 रिमाइंडर चाहिए, सो वंस का डिजिट क्या हो सकता है? इट मे बी 9. ओके, इट मे बी 14, it may be 19, again 24. okay, means वंस का डिजिट 9 हो सकता है या 4 हो सकता है. okay, understand? so this way you can find the वंस डिजिट. now divisibility of by 2. what is the divisibility rule by 2? If we talk about divisibility by 2, so first of all we have to talk about the multiplication table of 2. What is multiplication table of 2? See here, 2 1s are 2, 2 2s are 4. When we talk about multiplication table,
ऑफ 2, व्हाट इज 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड सो ऑन. ओके, सो हियर वंस का प्लेस, जब भी हम 2 का टेबल बोलते हैं, वंस का प्लेस ऑलवेज इवन है. ओके, 2 में 2 is even, 4 if we talk about 4, so 4 is even number. Now 6 is even, 8 is even, 10 में 0 is also even number. Then 12 में 2 is even, 14 again 4 is even. Okay, so we can say that when one's digit is even, then it will be divisible by 2. ओके, अगर वंस का प्लेस इवन है, देन एंड देन ओनली द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल बाय 2? हम बोल सकते हैं कि अगर वंस का प्लेस अगर इवन नंबर है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. Okay, understand. So what is divisibility rule by 10, 5 and 2? 10 इन तीनों ही divisibility rule में हम कौन सा प्लेस देख रहे हैं बच्चों? वंस का प्लेस. ओके, वी टॉक अबाउट वंस प्लेस. मीन्स 10 में हम देख रहे हैं वंस का प्लेस अगर 0 है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. 5 में हम देख रहे हैं इफ वंस प्लेस इज 0 and 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. ओके, एंड 2 का divisibility rule, what is divisibility rule by 2? When any number is divisible by 2, so if one's place is even, then and then the number is divisible by 2. Okay, one's का place क्या होना चाहिए? even होना चाहिए. तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. ओके, सो आज अभी हमने क्या क्या कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल पढ़े? हमने पढ़े 2 का, 5 का एंड 10 का. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, सो इट विल बी, अगर वंस का प्लेस इवन है, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2. ओके, इफ वंस प्लेस इज 0 and 5, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5, एंड इफ वंस प्लेस इज 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. ओके, सो अगर वंस का प्लेस 0 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, 5 एंड 2 ऑल्सो. ओके, अगर वंस का प्लेस 0 है तो वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 5 से भी डिविजिबल होगा. अंडरस्टैंड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you have to remember it. Okay, understand. Now let's see if the division n divided by 2 leaves a remainder 1. अगर n divided by 2 है और रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो n की वंस डिजिट क्या होगी? सो हम बोल सकते हैं n की वंस डिजिट, सी 2 के टेबल में 2 आता है बट 3 नहीं आता, 1 भी नहीं आता. ओके, 4 आता है बट 5 नहीं आता है. ओके, 6 आता है बट 7 नहीं आता है. सो वंस की डिजिट क्या क्या हो सकती है? अगर ऑड नंबर हम कोई से भी ले लें, अगर वंस की डिजिट ऑड है, सो हमें ऑलवेज 1 रिमाइंडर मिलेगा. वेन एवर वी डिवाइड बाय 2 और वंस का डिजिट, वंस का प्लेस अगर ऑड नंबर है, तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा बेटा? 1 रिमाइंडर मिलेगा. मीन्स इफ वंस डिजिट इज 1, 3, 5, 7 और 9, देन वी कैन गेट 1 एज अ रिमाइंडर. ओके, अंडरस्टैंड. सेम अगर हम n डिवाइडेड बाय 2 लेते हैं, लीव्स नो रिमाइंडर. सो इफ वंस प्लेस इज इवन, then we can get no reminder in it. Okay, and if we divide by 2, so we get no reminder in it. Okay, understand. Suppose that the division n divided by 5 leaves a remainder of 4 and the division n divided by 2 leaves a remainder of 1. What must be the ones digit of n? So अगर हमें 4 रिमाइंडर चाहिए, अगर हम n डिवाइडेड बाय 4 करते हैं,
n डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, सो हमें 4 रिमाइंडर हमने जो पीछे किया डेट इज 4 रिमाइंडर कब कब हो सकता है 9, जब 1 का प्लेस 9 हो या 4 हो, एंड द डिवीजन n is divided by 2 leaves a remainder of 1. What must be the ones digit of n? हमने अभी बात करी 1 रिमाइंडर होगा तो हमें ऑड नंबर चाहिए अगर 2 से डिवीज़न हो रहा है, और अगर 5 से डिवीज़न हो रहा है तो हमें कौन सा क्या नंबर चाहिए, 5 से डिवाइड कर रहे हो 4 रिमाइंडर चाहिए, देन द वंस डिजिट इज मस्ट बी 9 और 4. Okay, understand? Now divisibility by 9 and 3. Here first of all you have to remember 10, 5 and 2 के divisibility rule में हम always ones का place देखते हैं. Okay, these divisibility rule, these 3 divisibility rule we have always take ones place. हम कौन सा place देख करके रखते हैं, ones का. Okay, now divisibility by 3 and 9. So divisibility by 3 and 9 में what we can do, look carefully, हमें देखना है अगर कोई नंबर है, सपोज 3, 5, 7, 3 कोई नंबर है. ओके, सो हम अगर इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 3 into 1000, 5 into 100, 7 into 10 plus 3. Am I right? ओके, सो ये तो हमारा क्या हुआ, उसका एक्सपांडेड फॉर्म हुआ 3 into 999 plus 1. ओके, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 999 plus 1. 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 999 plus 1 लिख सकते हैं. वैसे ही 5 को हम क्या 100 को क्या लिख सकते हैं, 99 plus 1. 9 को 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 plus 1 plus 3. ओके, अब अगर मैं इन सब में से खाली जो नंबर हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट सी, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी है तो ये नंबर तो हमने एज इट इज़ लिखा है, इंटू प्लस 3 1 जा 3. वैसे ही हम बात करें 5 का मल्टीप्लिकेशन 99 में भी है और 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में भी है, 7 का मल्टीप्लिकेशन 9 में भी है एंड 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 में भी है, एंड 3. ओके, सो जो हमें ओनली वंस प्लेस दिख रहे हैं हम उसे अलग से लिख लेंगे, बाकी नंबर्स हमने एक साथ लिख दिए. सो वी सी दैट द नंबर 3753 विल बी डिविजिबल बाय 9 और 3 इफ 3573 इज डिविजिबल बाय 9 और 3. 3573 जो हमारी डिजिट्स थी, सी हियर हमारा नंबर क्या था, 3573. सो हम अगर डिजिट्स को प्लस करते हैं, सो डिजिट प्लस करने पर अगर वो 9 और 3 का मल्टीपल आता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और 3. ओके, अंडरस्टैंड, मीन्स सम ऑफ द डिजिट, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 3 or multiple of 9, then the number is divisible by 3 or 9. Okay, understand? So what we have learned, when in divisibility by 3 and 9, divisibility rule of 3 and 9 का क्या होता है बेटा, when we add sum of digits, when we are doing sum of digit, if the sum of digit of a number is divisible by 3 or is a multiple of 3, then and then the number is divisible by 3 or 9. Okay, suppose हमने क्या किया, 3573 को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 18, और वी नो दैट 18 जो है वो 9 का ही मल्टीपल है एंड 3 का ही मल्टीपल है, तो यस 18 इज डिविजिबल बाय 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अगर हमारा दूसरा कोई नंबर है, सपोज 3576, सो हम क्या करेंगे, 3 + 5 + 7 + 6, सो इट इज़ 21. बट 21 9 के टेबल में नहीं आता है. ओके, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, सो 9 के टेबल में नहीं आता है. सो 21 इज़ ओनली मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 3 ओनली. अंडरस्टैंड? इट इज़ डिवाइडेड बाय 3. Okay, understand? Hence, a number n is divisible by 9 if the sum of digit is divisible by 9.
otherwise it will be not, it is not divisible by 9. Okay, or sum of a number n is divisible by 3 if the sum of digits is divisible by 3. Okay, otherwise it is not divisible by 3. Okay, understand? So what is divisibility rule by 3 and 9? When the number is divisible by 3, when the sum of digit is divisible by 3, then the number is divisible by 3. ओके, द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल. आप उसको याद कर किस टाइप से याद कर सकते हो? जो आपने सम किया है, अगर वो 3 का मल्टीपल दिख रहा है, मीन्स अगर वो 3 के टेबल में आता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके, एंड सेम थिंग अगर सम ऑफ डिजिट 9 के टेबल में आता है, देन सो स्टूडेंट, yesterday we have already completed example number 5 and I will give you try this. Okay, so today example number 6 is if the three digit number 24x is divisible by 9, what is the value of x? So यहाँ पर हमें बताया है 24x कोई 3 डिजिट नंबर है, जहाँ पर 2 डिजिट इज गिवन 24 एंड थर्ड डिजिट इज x. एंड वी नो दैट व्हाट इज सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल बाय 9 होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. सो अब हमारे पास में 24x में 2, 4 और x है, तो हम करेंगे 2 + 4 + x शुड बी. अब 2 + 4 तो 6 हो गया, प्लस x, तो x को तो हम उसमें प्लस नहीं कर सकते हैं. व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय 9, देन अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए. या तो ये 9 होगा या 9 का कोई मल्टीपल होगा. 9 का मल्टीपल मीन्स 9, 18, 27. ओके, जो 9 के टेबल में आते हैं. सो दिस इज़ पॉसिबल व्हेन 6 + 8 = 9 और 18 और 27 और वी कैन से दैट 36. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 1 डिजिट नंबर है. सो अगर हम 18 लेने जाएंगे तो 18 पर तो वो 12 हो जाएगा. सो 18 इज़ नॉट पॉसिबल. सो x = 3. ओके, हमें 1 डिजिट नंबर ही चाहिए ना. सो यहाँ पर 6 + 3 = 9 होगा. सो दिस इज़ अवर राइट आंसर. ओके, अंडरस्टैंड? सो now example number 7, check the divisibility rule. Divisibility of 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 by 3. So what is divisibility rule by 3? हमें यहाँ भी क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स करनी है. हमें सारी डिजिट्स को प्लस कर लेना है. अगर ये सबका सम 3 का मल्टीपल है और 3 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके, अंडरस्टैंड? सो what is our answer? Our answer is 33. But 33, we know that 33 is divided by 3. So our answer is, we conclude that this number is divisible by 3. Okay, check the divisibility of. अब एक और नंबर अगर हमें दिया हुआ है 15287 by 3. अगर हमें इस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, सो हम क्या करेंगे? हम सारी डिजिट्स को प्लस करेंगे. 1 + 5 + 2 + 8 + 7 = 23 एंड दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. वी कंक्लूड दैट 15287 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज हमारा आंसर क्या आ रहा है? 23. एंड 23 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है. 3 का मल्टीपल नहीं है. ओके, सो आपको आज भी यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस करने हैं. 108 मीन्स 1 + 0 + 8 करना है. सो 1 + 0 + 8, 0 तो 8 नहीं होगा. 1 + 8 that is 9. So yes, 9 is multiple of 3, so it is divided by 3. 6 + 1 + 6, 6 + 6 12 and 1 13. It is not divisible by 3. Okay, so this way you can find the questions. Okay student, now 16.2, only 4 questions are here. See the questions carefully. 21y5 is a multiple of 9. अब हमें यहाँ y की वैल्यू निकालनी है. अब अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 + 1 + y + 5. 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + y = 9 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 27 मीन्स 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए. ओके, अब 18 अगर लेने जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10
बट हमें तो 1 डिजिट नंबर चाहिए. सो 8 + 1, y शुड बी 1. ओके, अगर y 1 होता है तो ये हमारा नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कंप्लीट द 16.2. Okay, and if you have any doubt in 16.2, tell me on WhatsApp. Okay student, have a good day.